on solutions. So that's an interesting thing that happens. So uh, so AI एंड मशीन लर्निंग का जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे उसमें आप लिस्प एंड प्रोलॉग के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और उसमें एक्चुअली क्या होता है कि अभी जो स्कोप है इट इज नॉट इनफ दैट आई कैन नॉट एक्चुअली present you with the programs related to Prolog, because you have to understand the basics of AI before we go to Prolog. So पहले आप मशीन लर्निंग का जो बेसिक्स है उसको जब आप सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आप प्रोलॉग प्रोग्रामिंग जब करने बैठेंगे तो आप बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. So at present it is limited, the actually in the knowledge is limited, so I cannot explain in details about Lisp and Prolog, but then also I'll try to introduce you with Lisp and Prolog. So I request all of you to get ready with your class notes copy for today. The date is 17/8/2020. Put on every page date, subject, name, roll number and section. And please maintain the notes, because अभी जो है जितने भी notes आप बनाते जा रहे हैं, this is unit 3 actually. So आपके पास जो है you should have enough notes, because 2 यूनिट हो चुके हैं, तीसरा यूनिट शुरू हो रहा है. So I request you to maintain your notes. It is very important, because for final examinations you will need those notes. So हर एक कॉपी, हर एक पेज के ऊपर डेट, सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर और सेक्शन लिखें. So it start with the introductory part, that is object oriented, functional and procedure ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ये 3 टाइप के प्रोग्रामिंग स्टाइल्स हमको देखने को मिलता है. उसमें से जो इंपरेटिव और डिक्लेरेटिव, ये 2 मेन कैटेगरी होता है एक्चुअली. so, हम लोग ने जो टाइप्स देखे लैंग्वेजेस, वी हैव सीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड. सो प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो स्टाइल है वो इंपरेटिव स्टाइल बोलते हैं इसको. ठीक. सो object oriented and procedure oriented follow an imperative programming style where we write lines of code, and each line of code is being interpreted or compiled, or the entire code is compiled, and the compiler or interpreter gives you the feedback related to the correctness of the statements that we have written. And if the statements are correct, then executes the entire program from top to bottom. So there is a sequence of execution from top to bottom. So that kind of a programming we have already done. So C is a procedure oriented programming, because there the procedures are very, very necessary. It is the focus is on creating functions. They are known as procedures. And we have seen, we will also see in unit 4 and 5 object oriented programming using C++. That style is also a top-down kind of an approach, where each and every statement is necessary to execute. Otherwise, if at all a particular statement is skipped, or the sequence in which it is not followed, then the expected outcome will not be achieved. So in object-oriented, examples are Java, C++, and like. And procedure-oriented is C, Pascal, and Fortran. It was old programming languages में आता था. So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अभी मैं फंक्शनल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट वी हैव डन ऑलरेडी. सो ये पैटर्न्स हैं. दीज आर द पैटर्न्स ऑफ हाउ टू राइट द कोड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पैटर्न एक अलग होता है, क्लास ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं. प्रोसीजर ओरिएंटेड का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं. तो ये पैटर्न ऑफ राइटिंग कोड है. They ultimately help us to solve problems that is under consideration. Main idea वही है. The purpose is to solve problems using programming. So if we categorize them, now the programming style को अगर हम categorize करते हैं, so there are 2 main categorization. One is imperative programming and second is declarative programming. Imperative programming जो है that we have already done is imperative programming, और declarative programming को functional programming भी बोलते हैं.
फंक्शनल प्रोग्राम के मतलब नहीं है फंक्शंस, सिर्फ फंक्शंस से रिलेटेड नहीं होता है, उसमें और भी कुछ चीजें होती हैं। फंक्शंस तो बहुत जरूरी है। देखिए, इंपेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव बोथ रिक्वायर फंक्शंस। हम दोनों में फंक्शंस बनाते हैं। आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसमें भी आप फंक्शंस बनाते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करेंगे, जावा प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसमें भी फंक्शंस बनाना पड़ेगा। और डिक्लेरेटिव स्टाइल को भी यूज करेंगे तो भी उसमें फंक्शंस बनाना पड़ेगा। लेकिन तरीका जो है, उसमें जो ट्रीटमेंट होता है ना, द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व इज वेरी वेरी डिफरेंट। वेरी वेरी डिफरेंट, एग्जैक्ट मतलब 90 डिग्री 180 डिग्री अपार्ट बोल सकते हैं। खैर, so we'll start with imperative programming. So the focus is on describing how the program works. That is, usually what we do is we use algorithms. When we are using algorithms, the steps are predefined, the steps are very much clear, and the compiler just has to run those steps, the programming steps. It is essentially a list of commands from the program, from the for the computer to perform. So the list of commands we already know, say for example printf, scanf, जो आपने already use किया हुआ है। सी प्लस प्लस में सी इन सी आउट है, एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। So these are the list of commands that we put in a series, and the system performs those, executes those commands, and we achieve some kind of a result. So they are series of statements that are executed turn-wise. So the sequence of execution is very, very important. In imperative programming, the sequence of statements execution is very, very necessary. If the sequence is not followed, then there will be a logical error in the program and we will not achieve the results. So we can't skip any step, or otherwise the entire purpose will not be solved. The problem will not be solved. We will get wrong outputs. So in imperative programming that we have already done, we already have worked on them. So we know that if the sequence of steps are not followed, then that particular imperative programming language will generate a improper result. So we have already seen C programming languages we have already done. So in imperative programming language, the algorithm is very, very necessary. It is an algorithm based kind of a programming style. So example तौर पे you can observe this example. यहाँ पे step 1 दिया है start. So we put a start point where the program has to start from. Say main function बोलते हैं. So यहाँ से start हो रहा है. Check initial state of door से एक छोटा सा example है ये. Check initial state of door पहला step है. Second step is if door is closed, reach out to the door and handle and turn it. उसके बाद remember new state, otherwise continue. Then walk through the doorway, close door, end. So what we are doing here is a very simple kind of an algorithm to open a door and pass through the door when it is open, and pass through the doorway, walk through the doorway. ये एक छोटा सा जो है स्टेप वाइज एल्गोरिथम है इसका। अब इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, यू कैन इजीली ऑब्जर्व नाउ दैट if any of the steps, say 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 steps, start से लेकर end तक 7 steps हैं। if we shuffle the order, से मैं फर्स्ट स्टेप के बाद सीधे अगर सिक्स्थ स्टेप में चला जाता हूं, से फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट and sixth step is close the door. So if I go there, then I want to go to say fifth step, walk through doorway. So it is not possible. So you can observe here that the sequence of statements is very, very necessary. Sequence of steps is very, very important. If any sequence is not followed, then we will not achieve the result. The result is that we have to walk through the doorway. ठीक है? So the result is that we should successfully walk through the doorway. Because the door is closed, we have to open the door, we have to walk through it, and we have to close the door. So ये achieve करना था हमको। अगर हम ये जो steps दिए हैं 1 से लेकर 7 तक, if you don't follow these steps in a very exact sequential manner, exact sequential manner में इसको follow नहीं करेंगे exact order में, तो we cannot achieve the correct resolution. So this is imperative programming style.
एल्गोरिदमिक प्रोग्रामिंग स्टाइल बोलते हैं, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक। सो इससे आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि the sequence of steps or the order in which the steps are defined is very very necessary. नेक्स्ट आता है डिक्लेरेटिव या फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग it is very very flexible in the sense that the sequence of execution is not necessary. Sequence is not necessary, but the steps are to be followed. If I am following a particular step, I have to complete the step. And the sequence, the order in which the steps are there is not necessarily to be followed. It can be followed in any order. So it is little bit of flexible. It tells the program that we write, it tells the system to accomplish a particular work by following a set of basic rules. So what we have to do in functional programming, first we have to set a set of basic rules, specify a set of basic rules to the system, and these rules are known as declarations. इसलिए इसको हम declarative programming कहते हैं. So in declarative programming, what we do, we declare the rules. जैसे कोई भी एक गेम खेलना है तो आपको रूल्स पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो गेम खेलने का कोई मतलब नहीं. The same idea is here, that if I want to program using declarative programming style, then I have to declare all the rules. I should be very much careful in declaring the rules. The rules should be laid out in such a way that they should not contradict each other. If I am saying that A is father of B, so I cannot say another rule that B is father of A. ऐसा नहीं हो सकता. So that logical understanding of the rules should be very clear to me. Then only I can explain it to the system. So generally क्या होता है कि इसमें हम declarations देते हैं of the rules. जैसे अभी मैंने कहा कि A is father of B. So naturally B cannot be father of A. तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूँ B is father of A, that means I am not putting up the rules in the proper manner. तो naturally अगर rules गलत है तो the actions will be improper. The result will be improper. So we have to lay down the rules, and those are known as the declarations. That's why this is known as a declarative programming style. So now when we have put this basic set of rules, we have fed into the system, then what we do, the next step is that we pose queries to the system. So A is say father of B, and A is father of C. से मैंने दो रूल्स बताए. A is father of B and A is father of C. So B and C both will be siblings of A. ये ऑटोमेटिकली इन्फर करेगा. तो सिस्टम विल इन्फर फ्रॉम द रूल्स. सो मैं अगर कहूं कि B, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन B एंड C, सो ये मैंने क्वेरी पोस्ट किया. ठीक. सो मैंने क्या क्या बताया पहले. फर्स्ट आई हैव व्हाट आई हैव डन, आई हैव पुट अ सेट ऑफ रूल्स. से A इज फादर ऑफ B एंड A इज फादर ऑफ C. ये दो रूल्स मैंने सिस्टम को फीड कर दिया. नेक्स्ट व्हाट आई डू, आई पोज द सिस्टम विद अ क्वेरी. I feed a query to the system that what is the relation between C and B. So the system now will, from the rules, will try to infer C and B are siblings. और siblings का relation कैसे बनता है वो भी मुझको बताना पड़ेगा. मतलब set of rules में वो भी मेरे को बताना पड़ेगा कि siblings अगर मुझे कहना है B और C और B को, तो वो उनका जो relation है उनका सेम फादर होने चाहिए. तो उस टाइप के रूल्स जब हम फीड कर देते हैं तो सिस्टम आपको रिप्लाई बैक करेगा कि सी एंड बी आर सिबलिंग्स. सो इस टाइप का प्रोग्रामिंग चलता है. मतलब इट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग. सो द सिस्टम ट्राइज टू गिव यू सम आंसर्स रिलेटेड टू द रूल्स दैट यू हैव स्पेसिफाइड. इसको बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग द सिस्टम. व्हाट वी आर डूइंग when we are putting rules into the system, actually what we are doing, we are training the system. जैसे हम छोटे बच्चे जब थे तो हम, हमारा जो ब्रेन था बिल्कुल क्लीन था. हमको कैसे पता लगा कि कोई चीज गर्म है या ठंडा है. हमको कैसे पता लगा कि जो है जो है एप्पल इज ए फ्रूट एंड टोमेटो इज ए वेजिटेबल. ये हमको कैसे पता लगता है.
दोनों तो राउंड शेप के हैं, दोनों रेड कलर के हैं. How do we understand that? That intelligence comes from the experience, from the rules that we create in our mind. And when we are creating those rules in our mind, we are actually creating inferences from the rules. And from the inferences, we again create some rules. So ये एक तरीके का feedback system रहता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने experiences को record करते जाते हैं. And what are experiences? Experiences are nothing but a set of rules that we put in our brain. ये है तो इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये नहीं है तो ये नहीं है. तो ये जो हम if else करके हमारे दिमाग में हम स्टोर करते जाते हैं, they are nothing but set of statements, set of rules. तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें, अवर ब्रेन इज ए वेरी ह्यूज सुपर कंप्यूटर, हाईली पैरेलल सुपर कंप्यूटर. उसका कैपेबिलिटी इतना हाई है पैरेलल प्रोसेसिंग का, जिसका जो है अभी भी इतना हाईली पैरेलल सिस्टम, मैसिवली पैरेलल सिस्टम जो है बना तक नहीं है अभी तक, साइंटिफिकली क्रिएट नहीं कर पाए हैं अभी तक ह्यूमन बींग्स ने. बट उसका एक रेप्लिकेशन जरूर बनाते हैं, कोशिश करते हैं उसका एक सिमुलेशन बनाने का, इन द फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स. So this is how we use these declarative kind of programming या functional programming style to create systems that can infer or can perform human-like inferences. So that's a very interesting topic and very growing topic. So a very simple example is algebra rules. Algebra rules में जो है we already know what we do, we understand the basic rules in algebra. And when we are given some problem, algebraic problem, we try to solve the problem using the algebraic rules. So इस टाइप के चीजें आप जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं. लिस्प और प्रोलॉग में आप एक्चुअली इसको कर सकते हैं. यू कैन मेक द सिस्टम अंडरस्टैंड द algebraic रूल्स, and if you give an algebraic expression, then the system will try to find out a solution of the algebraic expression from the rules that you have specified. So यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जब मेन पॉइंट जो सिस्टम कैसे सही वर्क करेगा, उसका मेन पॉइंट यह है कि उसको सही सेट ऑफ रूल्स देना पड़ेगा. यू हैव टू पुट करेक्ट सेट ऑफ रूल्स, लॉजिकल नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी सेट ऑफ रूल्स you have to feed to the system. As soon as you do that successfully, then your system becomes quite intelligent to perform the tasks which it has not done earlier. So ऐसे टास्क वो कर रहा है जो पहले उसने नहीं किया है. So this is a very interesting thing, very important achievement that our programming has achieved, our computer science has achieved. So algebraic expressions वाला जो algebraic rules वाला जो example is a very apt example, very common example that we will be doing when you start understanding machine learning and AI. Then you will start implementing these kind of programs. So declarative या functional programming का एक छोटा सा example हम देख लेते हैं. So the problem को understand करें. यहाँ पे क्या लिखा है? I want to change a creature from a horse to a giraffe. So हमारा जो aim है, the aim is I want to change a creature from a horse to a giraffe. So you can observe the problem statement एक ऐसा मतलब human like kind of a statement है. अभी इसी चीज को अगर हम equivalent अगर आप सोचें कि अगर aim आपने जो अभी तक लिखा होगा अपने C प्रोग्राम में, aim is to calculate Fibonacci series. ठीक है, वो मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट हो गया, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है. द एम से हो सकता है टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए पर्सन और टू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक, अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अभी इसको देखिए, इसमें क्या लिखा है? आई वांट टू चेंज अ क्रीचर फ्रॉम ए हॉर्स टू ए जिराफ. से कितना ह्यूमन लाइक स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग. अब इसमें व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द क्रीचर इज द इनपुट. The system has to take creature as the input. So there has to be some basic rules given to define a creature. What would it be like? So creature को हम मान के चल रहे हैं 4 उसके पैर होंगे और जो है एक सिर होगा, एक बॉडी होगा, टेल होगा, उसको क्रीचर मान के चल रहे हैं. We define it like that. वो एक रूल बेस बनाते हैं जिसमें we define the creature and give it to the system. Before giving it to the system, we have to specify some
रूल्स। तो रूल्स में क्या है कि लेंथन द नेक, लेंथन द लेग्स, अप्लाई स्पॉट्स, गिव द क्रीचर अ ब्लैक टंग एंड ठीक। सो हॉर्स टेल का मतलब एक टेल है उसके पास, हॉर्स लाइक टेल है। तो अब ये स्टेप्स आप ऑब्जर्व करें, इन स्टेप्स को जस्ट ऑब्जर्व दी स्टेप्स। अब जो स्टेप्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें देखिएगा नंबरिंग नहीं दिया मैंने स्टेप्स। नंबरिंग क्यों नहीं दिया है? बिकॉज ये स्टेप्स को आप किसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये सभी स्टेप्स को आप, इसमें शर्त क्या है? द ओनली जो कंडीशन इज दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट एवरी स्टेप, every step should be complete in itself. So if we complete all the steps, say ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, there are 5 steps. If we complete all the 5 steps, then the creature will be converted to a giraffe. अब the observation is that कि ये जो steps हम लिखे हैं ये किसी भी order में follow करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो पहले apply spots कर दीजिए, उसके बाद आप remove tail कर लीजिए, उसके बाद आप lengthen neck कर दीजिए, गिव द क्रीचर अ ब्लैक टंग कर लीजिए, उसके बाद लेंथन द लेग्स कर लीजिए। अगर ये सभी स्टेप्स आपने बिना किसी सीक्वेंस के भी अगर कर लिया, देन ऑल्सो यू कन्वर्ट द क्रीचर इनटू ए जिराफ और इनटू। सर अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो? इसमें एक इंपॉर्टेंट मैंने में कहा कि जो हॉर्स है इट शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड एज ए क्रीचर, मतलब उसको क्रीचर होना चाहिए। क्रीचर में जैसे 4 लेग्स, एक टेल, फेस वगैरह, जो बॉडी है वगैरह वगैरह होना चाहिए। वो इनपुट जरूरी है। वो देने के बाद अगर ये पांचों स्टेप्स अगर आपने पूरे किए, कंप्लीट किए, सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टेप को कभी भी कर लीजिए, एक बार जरूर करना है, ठीक। एंड नॉट मोर देन वंस। इसको अगर एक एक को हर स्टेप को अगर कंप्लीट करते जाएं, बिना किसी सीक्वेंस के भी कंप्लीट करेंगे तो भी द हॉर्स विल बी कन्वर्टेड टू जिराफ, ठीक। सो दिस इज द attractive feature of functional programming, where the sequence of execution is not necessary, but completion of the steps is necessary to produce the correct result. तो सीक्वेंस आप कुछ भी चेंज करते जाइए, कंप्लीट जरूर करेंगे अगर स्टेप को, तो आप किसी भी सीक्वेंस में करते जाइए, आपको रिजल्ट जो है वो करेक्ट मिलेगा, ठीक। सो इन सीक्वेंस ये जो स्टेप्स है, पांचों स्टेप्स को आप किसी भी सीक्वेंस में करके देख लीजिए, लेकिन वो सीक्वेंस कंप्लीट होना चाहिए, वो स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। द result will be horse will be converted to giraffe. So this is the attractive feature or kind of a unique feature of functional programming style. So this is how we do when we are performing functional programming. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रूल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूल बेस्ड जिसको बोलते हैं। सो दैट हैज टू बी क्रिएटेड। वो आप जब एआई और मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब आपको रूल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा आपको। सो लास्टली वी जस्ट कंपेयर देम, ये कंपैरिजन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो कंपैरिजन में देखिए कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है पूरे लेफ्ट साइड में, जो फर्स्ट कॉलम इज कैरेक्टरिस्टिक, इसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। इंपेरेटिव अप्रोच जो है, इंपेरेटिव इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और द फंक्शनल द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन, वो इंपेरेटिव स्टाइल। फंक्शनल अप्रोच जो है वो डिक्लेरेटिव स्टाइल है। सो डिक्लेरेटिव अप्रोच इज फंक्शनल अप्रोच एंड जनरल प्रोग्रामिंग अप्रोच जो हम अभी तक हम करते आ रहे हैं वो उसको हम बोलेंगे इंपेरेटिव अप्रोच। सो कंपैरिजन में देखिएगा, बहुत क्लियर कट कंपैरिजन देखिएगा, डिफरेंस है। प्रोग्रामिंग फोकस किस में रहता है? इंपेरेटिव स्टाइल में द फोकस इज ऑन एल्गोरिथम्स, steps is necessary, step 1, step 2, we have to specify the step numbers, and sequence of execution is very necessary. So algorithmic steps are very important and the sequence of execution is very important in imperative approach, ठीक। and वही चीज contrast में if you see in functional approach, what information is desired and what transformations are required is more important, ठीक। information in the sense rules, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब उन रूल्स को यूज करके बाकी के जो मैनिपुलेशंस वो कैसे होंगे उसको बताना, स्पेसिफाई करना ज्यादा जरूरी होता है। वो प्रोग्रामर का फोकस उसमें ज्यादा रहता है। तो दैट इज अ फंक्शनल अप्रोच। इंपेरेटिव अप्रोच में एल्गोरिथम पे ध्यान दिया जाता है और उसके स्टेप्स को सीक्वेंशियली फॉलो करने पे ध्यान दिया जाता है।
उसके बाद कंपैरिजन में स्टेट चेंजेस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इंपरेटिव अप्रोच में, क्योंकि स्टेट एक स्टेप को आप जब कंप्लीट करेंगे तो स्टेट चेंज होता है, फिर दूसरे स्टेप में जाते हैं, फिर स्टेट चेंज होता है, तीसरे स्टेप में जाते हैं तो स्टेट चेंज होता है. स्टेट चेंज इज नथिंग बट द डेटा मैनिपुलेशन दैट अकर्स व्हेन वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज स्टेट चेंजेस जो है वो डेटा के जो सिस्टम है उसका स्टेट चेंज होता है, एंड दैट स्टेट चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंशियली. लेकिन फंक्शनल अप्रोच में स्टेट चेंज जो होता है वो नॉन एग्जिस्टेंट होता है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट चेंजेस. ठीक, so because there are rules and accordingly that the transformations will take place, so there is no need to track the state changes क्योंकि sequence is not important. कैरेक्टरिस्टिक में ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन अभी अपन ने वही डिस्कस किया. इंपेरेटिव अप्रोच में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज वेरी वेरी नेसेसरी, उसके बिना नहीं होगा, उसके बिना गलत आंसर आएगा. बट फंक्शनल अप्रोच में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. कर सकते हैं, अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो जरूरी नहीं है. द रिजल्ट विल बी अचीव्ड. दिस इज द ब्यूटी ऑफ फंक्शनल अप्रोच. देन प्राइमरी फ्लो ऑफ कंट्रोल. So the flow of control हम कैसे कंट्रोल करते हैं? How to control the flow of execution actually? In order to control the flow of execution, imperative languages में loops में while, do while, for, conditional statements, if else, switch case and functions, method calls, जिसको हम लोग बोलते हैं functions procedures बनाते हैं हम लोग. function का name देंगे, input argument देंगे, return type देंगे वगैरह वगैरह. So this is the approach when we are doing imperative programming. बट फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शन पे ही पूरा काम होता है. एवरीथिंग इज फंक्शंस. फंक्शन कॉल्स, रिकर्शन, ये बहुत ज्यादा यूज होता है. सो फंक्शंस का मतलब क्या है? नथिंग बट टू क्रिएट सेट ऑफ रूल्स. कुछ फंक्शंस को कॉल करते हैं हम लोग और उसी पे पूरा काम रहता है. जैसे रूल्स को अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम देना है तो फंक्शन कॉल करके ही देते हैं वगैरह वगैरह. तो उसमें पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग ही फंक्शन बेस्ड रहता है. जो फंक्शंस हम इंपरेटिव अप्रोच में यूज करते थे उसी तरीके का फंक्शन जो है वो फंक्शनल अप्रोच में भी यूज होता है. लेकिन इसमें लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज द सिस्टम अंडरस्टैंड्स इन अ वेरी डिफरेंट वे. मतलब इंपरेटिव अप्रोच इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच, एंड फंक्शनल अप्रोच जो है बहुत ही लॉजिकल अप्रोच होता है, बहुत ही अलग टाइप का अप्रोच होता है. ह्यूमन काइंड ऑफ एन अप्रोच रहता है. उसके बाद प्राइमरी मैनिपुलेशन यूनिट. प्राइमरी मैनिपुलेशन यूनिट का मतलब होगा जो बेस हम लोग यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे पूरा प्रोग्रामिंग की जाती है. सो इन इंपरेटिव अप्रोच डेटा इज द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. डेटा के ऊपर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह बनते हैं. सो दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच इज डन इन इंपरेटिव काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग. फंक्शनल में जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, फंक्शंस पे ही सब कुछ रहता है और फंक्शन ही डेटा मैनिपुलेट करेगा, सब कुछ फंक्शन करके देगा. So the main primary unit of manipulation is functions. Examples में imperative approach के example है जावा, सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा. और फंक्शनल अप्रोच जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है उसमें लिस्प, प्रोलॉग एक्सेट्रा ये सब आते हैं. सो दीज आर द कंपैरेटिव पॉइंट्स. इसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया था उनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा. प्लीज नोट दीज पॉइंट्स. ये डिफरेंस के पॉइंट्स को प्लीज नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रहे तो प्लीज मुझसे पूछें. एक बार रिव्यू कर लीजिए.